Hello guys, welcome back to my YouTube channel which is Tutor Hiran Classes. I hope that you all are safe and secure. Be safe and secure because my friends the fourth wave of Deltacron have come and entered in India, so be safe. So today I am going to start the class 8 topic History, chapter number 1, how, when and where. So, those who are new on my channel, please like my channel, subscribe it and press the bell icon so that you all can get the notifications easily. So, चलिए बढ़ते हैं टॉपिक पे. The topic was how, when and where, means the chapter's name कब, कहा, कैसे. अब ये टॉपिक जाना पहचाना लग रहा है बिकॉज माई फ्रेंड्स यू हैव लर्नड इट इन क्लास 6 ऑल्सो. क्लास 8 में ये थोड़ा लिटिल डिफरेंस है. इन दिस चैप्टर वी विल बेसिकली एक्सपोजर, मतलब हम ज्यादा ध्यान देंगे अकॉर्डिंग टू द डेट्स पे. नाउ चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम. हाउ इंपॉर्टेंट द डेट्स आर, दैट वाज आवर फर्स्ट टॉपिक. सो मैं आपको पॉइंट वाइज समझाऊंगा, आप उसको साइमल्टेनियसली उसको आप समझिए. then you read the books and then you will memorize the whole chapter easily and you can do the exercises also. So how important the dates means, important क्यों थे dates, what is the importance in history. हिस्ट्री को एसोसिएट किया जाता था. पहले के लोग क्या करते थे, पीपल एसोसिएट हिस्ट्री एज अ स्ट्रिंग ऑफ डेट्स के स्ट्रिंग में उसको एसोसिएट किया जाता था बाय द पीपल. मींस हिस्ट्री इज व्हाट दैट, हिस्ट्री इज अबाउट द मेन डेट्स. बट कुछ लोग इसीलिए हिस्ट्री नहीं लेते हैं माय फ्रेंड्स बिकॉज उनको डर लगता है कि इतना डेट कौन याद करेगा. 1916 नादिर शाह इन्वेटेड दिल्ली एंड चित्तौड़गढ़ के राजा थे शेर मेवाड़ सिंह इन 1967. That dates we can't memorize. But my friends, the main importance of history is the dates. Is because अगर हम date नहीं जान पाते, then how we can discover our history? Actually, history is about the changes that occur over and over time in a fixed interval of period. Means history is about the finding out of new things which was done in the past and the new things that have to be changed in the present. यही हमें वो डिफरेंस बताता है, ये डिफरेंस हमें पैदा करता है. फॉर एग्जाम्पल, पीपल डिड नॉट बिगिन ड्रिंकिंग टू टी. मतलब उस जमाने में पीपल मतलब रोज एवरी डे दे डिडंट यूज टू ईट ड्रिंक टी because the development of the tree hasn't arisen to that till much. So इसीलिए इस चैप्टर में जो है लिप्टन्स टी एक एडवर्टाइजमेंट दिया गया था, उसमें लिखा है इट वाज द फेमस टी on that period but they didn't used to eat it. So इसी से हमें पता चल रहा है कि the tea from the early period to the new period, उसके आने का जो जर्नी है उसमें टी ने कितना changes developed. Means it was a diverse changes he have experienced in the in this chapter, in this poem, in this how, when and where. Means कब, कहां से और कैसे से वो आया. ठीक है, इतना ही टॉपिक था. नेक्स्ट टॉपिक which dates क्या, कौन से डेट्स, अगर हो भी डेट्स तो कैसे डेट्स, यही हम पढ़ेंगे. सो डेट्स बिकम इंपॉर्टेंट. डेट्स वाई बिकम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आता है, तो द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन विल बी डेट बिकम्स इंपॉर्टेंट बिकॉज हिस्टोरियंस, those who write the history, my friends, they are known as historians, focus on the particular set of events. इसीलिए historians उसमें फोकस देते थे. इसका मतलब obviously they write the history, but they used to focus on the dates. They used to focus on the events on a set of a time. इसीलिए dates important होते थे. Next है the James Mill, एक स्कॉटिश इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल फिलोसोफर थे.
उन्होंने 3 वॉल्यूम का एक बुक लिखा. He has used to write about the 3 volume book. What was that book? A History of British India. Very, very pretty book it was that. And this book helps our archaeologists, our historians on that present period to discover the British India of that time in a prophetic manner. मतलब उन्होंने जो लिखा, उन्होंने इतनी ब्रीफली उसमें लिखा, मेंशन किया दैट व्हाट वाज द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ऑन दैट टाइम. उन्होंने क्लासिफाई किया डिफरेंट पीरियड्स में उसको, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश, तीनों पॉइंट में उन्होंने उसको किया. नेक्स्ट थिंग वाज दैट द ब्रिटिश वर एब्सोल्युटली प्रेजुडाइज द इंडियन हिस्ट्री. वो प्रेजुडाइज करते थे इंडियन हिस्ट्री को, ज्यादा मानते नहीं थे इंडियन हिस्ट्री में. वो अपने ही हिस्ट्री में ज्यादा फोकस देते थे. ऑब्वियसली देंगे क्योंकि वो तो ब्रिटिश बाहर से आए थे एंड दे यूज्ड टू कॉलोनाइज देम. Okay, next thing was that apart from British classification, basic application affiliation के बाद भी, मतलब सर्वे के बाद भी, historians have divided history into ancient, medieval and modern. इन तीनों में हम यही पढ़ेंगे. अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? अभी हम एंशियंट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं. मिडिएबल हिस्ट्री भी होता है जो मध्यकाल होता है, एंड अनदर इज द मॉडर्न हिस्ट्री, मतलब मॉडर्न काल में जो अभी का जो हिस्ट्री है. And many historians therefore refer the period as a colonial. Colonial इसी को ही कहते हैं. इसीलिए हिस्ट्री के पीरियड को historians used to describe as the word colonial. अब मैंने जो ये colonial word बोला, ये colonial word क्या है, दूसरे में ही हम पढ़ेंगे कि हाउ डू वी पीरियोडाइज और व्हाट इज कॉलोनियल. इन 2 टॉपिक में हम इसके बारे में ब्रीफ डिस्क्रिप्शन और डिस्कशन करेंगे. सो हाउ डू वी पीरियोडाइज मीन्स हम अपने पीरियड में कैसे अपने आप को अपनाते हैं, यही हम पढ़ेंगे. नाउ यहां पर जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है इस टॉपिक में, सब टॉपिक जो आता है, दैट इज कोलोनाइजेशन. नाउ व्हाट इज कोलोनाइजेशन? Colonization is the process in which one country subjugates another and thus brings political, economical, social and cultural changes on that country. समझ में आ गई? फिर से दोहराता हूं कि colonization क्या है, जो कि एक कंट्री में सब्जुगेट करता है. क्या सब्जुगेट करता है और क्या ब्रिंग लाता है? पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल एंड कल्चरल चेंजेस लाता है. उसी को हम दैट विल नो एज कॉलोनाइजेशन. नाउ हिस्टोरियंस यूज डिफरेंट रिसोर्सेस इन राइटिंग द लास्ट 250 years ऑफ द इंडियन हिस्ट्री में. उन्होंने कॉलोनियलिज्म जो है ये यूज किया और ये उनके लिए बहुत बेहतर एज अ मतलब कीवर्ड यूज हुआ. एंड व्हाट इंपॉर्टेंट सोर्स इज द ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑफ द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन. ऑफिशियल रिकॉर्ड के बिना वो लिख ही नहीं पाते इतने डिटेल में. तो हम क्या करते हैं, हम तो हिस्ट्री नहीं जान पाते तभी के. तो अकॉर्डिंग टू द हिस्टोरियंस दे यूज्ड टू कलेक्ट the main official record. So that was used to take as the important resource of that time. Now the British क्या सोचते थे? ब्रिटिश बिलीव दैट द एक्ट ऑफ राइटिंग वॉज इंपॉर्टेंट था उनके खिलाफ. बट इजी इंस्ट्रक्शन प्लान पॉलिसी जो है ये भी क्लियरली रिटन अप के लिए उनको प्रेशराइज किया जाता था हिस्टोरियंस को. तो वो भी उसमें वो क्लैरिफाई कर देते थे. बट इट्स ऑल्सो वेरी गुड थिंग. वो अगर क्लैरिफाई करेंगे तो हम तो अच्छे से हिस्ट्री को पढ़ पाएंगे. सो दैट्स ऑल. नेक्स्ट टॉपिक बट नॉट द लीस्ट इज द what is colonial. Very important topic my friends. colonial क्या है? Actually the practice of serving. तभी क्या चलता था? सर्वे का प्रैक्टिस चलता था. वो कॉमन था अंडर द colonial administration पे. ना आप जो होता था 19th सेंचुरी की बात चल रही है कि जब 19th सेंचुरी में क्लियरली सर्वेस हुआ करते थे तो तब वहां पर वो क्या कैरी करते थे? दे कैरीड आउट टू मैप द एंटायर कंट्री के लिए सर्वे किया जाता था उस टाइम पे. दैट्स ऑल इन द सब टॉपिक. नेक्स्ट, जब डिक्लिनेशन आ गया, मतलब 19 पीरियड जब चले जाने के अंतर पे आया, तब क्या हुआ? सम लिटरली एंड सेंसस ऑपरेशंस आर हेल्ड इन द अर्ली 10 years के बाद, इंटरवल ऑफ 10 years के बाद सेंसस ऑपरेशन शुरू हो गए. उस
कॉलोनियल पे, एंड इट इज ऑल्सो प्रॉपर्ड टू डिटेल, मतलब इतने प्रोफेटिक मैनर में उसको डिटेलिंग किया जाता था कि उसमें नंबर ऑफ पीपल्स इन ऑल द प्रोविंसेस ये भी मेंशन किया जाता था, नोटिंग अबाउट द कास्ट ऑफ द पीपल के बाद में भी नोटिंग किया जाता था, एंड अबाउट द रिलीजियंस एंड अबाउट द ऑक्यूपेशन। मतलब इतना सुंदर से उसको एक सजावट में, मतलब एक रिकॉर्ड जैसा होना चाहिए वैसे वो रखते थे। नेक्स्ट लास्ट सब टॉपिक इज दैट देयर आर प्लेंटी ऑफ सोर्सेस। तब क्या प्लेंटी ऑफ सोर्सेस हो गया, बट मे हैव बीन डिस्ट्रॉयड, वो डिस्ट्रॉय भी हो गए होंगे, हम नहीं जानते अभी तक, ये अभी तक रस्त नहीं हुआ है। एंड दिस सोर्सेस इंक्लूड डायरीज भी उसमें होते थे, डायरीज ऑफ पीपल होते थे, अकाउंट्स ऑफ द पिलग्रिम एंड ट्रेवलर, जो बाहर से आते थे उनके अकाउंट्स भी वहां पर मेंशन किए गए थे होते थे, ऑटोबायोग्राफी करते थे, किसके इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज के भी मेंशन किया जाता था। मतलब एक ऐसे रिकॉर्ड जो होना चाहिए एक रिकॉर्ड, वैसे वो उसको मेंटेन करते थे। सो दैट वॉज ऑल फॉर दिस टॉपिक हाउ व्हेन एंड वेयर। इसमें हमने अच्छे से पढ़ा कॉलोनियल क्या है, कॉलोनाइजेशन क्या है, हम अपने पीरियड में कैसे अपने आप को अपनाते हैं, डेट्स क्यों इंपॉर्टेंट है, और हिस्ट्री में डेट्स का क्या महत्व है, वो भी हमने सब पढ़ा। आप जस्ट बुक में पढ़ लीजिएगा रीडिंग, एंड यू विल बी टोटली योर क्लियर विल बी सॉल्व। Okay, friends, that's all for today. Thank you. Bye bye. Good night.